Hello viewers, I am Deepti. In continuation of predicted questions for ICSE class in geography, today I am going to make second part of the video in which I am going to cover next three chapters which are very important from examination point of view also. So our first chapter is soils of India, or you can say soil resources. So general question related with this chapter are, first question is, name two innovative agricultural techniques that can help to prevent soil erosion. As you know, according to the trend in other subjects also, there is mixing of two topics related to two different chapters, but they are covered in one question here. So दो एग्रीकल्चर टेक्निक्स देनी है जिससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो रहा है, तो इसमें एग्रीकल्चर के चैप्टर की नॉलेज भी यूज आएगी और सॉइल इरोजन की भी. आंसर्स तो सिंपल है बट आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा. क्रॉप रोटेशन, कॉन्टूर प्लोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग या शेल्टर ब्लेड, इसमें से कोई भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. Our next question is, mention any two differences between alluvial soil and red soil, alluvial soil and back soil, alluvial and laterite soil, transported and residual soil, or transported and in situ soil. Next is, different regions in India has different kinds of soil. Give reason. Now I am going to cover a few, name these type of question. So name the soil which, जिसमें आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ट्रेल क्वेश्चंस बनके इनके साथ, जैसे आपके बाकी का क्वेश्चन इन पे डिपेंड करेगा, तो पहले आपको इनके नेम प्रॉपर्ली पता होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर्स करेक्टली. सो नेम द सॉइल which is good for cultivation of cashew nut, covers almost all of the West Bengal, is a result of leaching found in the summits of western and eastern Ghats. और इसके अलावा हम इसमें और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे कि is good for sugarcane cultivation, acidic in nature, occurs ex situ, an important transported soil of India, soil that is rich in iron oxide, a soil that covers in situ and is good for cotton crop, formed due to high temperature and heavy rainfall, sticky when wet and cracks when dry, soil mainly used for making bricks, soil classified into khadar and bhangar, सुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग, वेरीज इन टेक्सचर. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन नेम दीज टाइप ऑफ में कवर होते हैं. हालांकि इनके साथ एसोसिएटेड मार्क तो एक ही होगा, लेकिन बाकी का क्वेश्चन इन पे डिपेंड करेगा, इसलिए दीज आर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ द सॉइल्स नेम बिलो दैट मेक्स देम मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन. जैसे कि ब्लैक सॉइल के लिए कौन सी होंगी, रेड सॉइल के लिए कौन सी होंगी. नेक्स्ट, डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस लाइक definitions which are important from this chapter: pedogenesis, humus, bhangar, sheet erosion, soil conservation, in situ soil, residual soil, soil fertility, soil conservation. तो ये हमने करने हैं. नेक्स्ट इज, एक टाइप ऐसी भी आ सकती है, स्टेट द ज्योग्राफिक टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. प्रोसेस की डेफिनेशन उन्होंने दे दी, आपको नाम देना है. द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मिनरल्स डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड percolates to the bottom, leaving the topsoil infertile. The process by which rainwater flowing in definite path removes the topsoil, thus causing deep cuts to the surface of the land. तो इनमें आपने geographic term में सिर्फ one word answer इनके साथ देना है. Like we have covered so many different type of questions. Similarity भी आ सकती है red soil और laterite soil के बीच में, क्योंकि आपको पता है इसमें काफी सारी similarities आ जाती हैं. Now I am coming on a particular type of soil. First of all, I am going to cover alluvial soil. So all the questions related with alluvial soil only. Name the transported soil most widely found in India and how is this soil formed? कैसे बनती है? Next is, mention two differences in the alluvial soil of नॉर्दर्न प्लेन्स, या फिर वो पर्टिकुलरली कोई स्टेट जैसे उत्तराखंड बोल सकते हैं, एंड द एलुवियल सॉइल ऑन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, जैसे कि वो वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं. तो दोनों सॉइल में क्या डिफरेंस है एलुवियल सॉइल है, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन में मिल रही है या कोस्टल प्लेन में मिल रही है, उत्तराखंड में मिल रही है, वेस्ट बंगाल में मिल रही है, में क्या फर्क आ जाएगा. अगर इसी टाइप का और क्वेश्चन हम देखेंगे तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, नेम एन एरिया वेयर इट इज फाउंड, नेम टू क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल. और लास्ट आते हैं हमारे गिव रीजनिंग टाइप क्वेश्चन. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि चार प्रोमिनेंट टाइप ऑफ यानी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो हर चैप्टर में आते हैं ए बी सी डी 2-2-3-3 मार्क्स के, वो कैसे होंगे. तो उसमें गिव रीजन भी हमारा है 3 से 4 मार्क्स का. तो इसमें गिव रीजन क्या बन सकते हैं, खादार सॉइल आर प्रेफर्ड ओवर भांगर सॉइल, alluvial soil is extremely fertile, alluvial soil differ in texture, और खादार is more fertile than भांगर. तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल.
How is black soil formed? Name one cash crop for which black soil is most suited. Name two states in India where this is found. Mention three characteristics to black soil which makes the soil fertile. इसमें give reasoning में black soil is suitable for the growth of cotton, black soil does not get leached, black soil is a residual soil, black soil have self flowing quality. इस तरह के क्वेश्चंस मेन बन सकते हैं। या फिर एक और, नेम द इंडियन सॉइल फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ बेसिक इग्निशियस रॉक्स। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है ब्लैक सॉइल के बारे में। नेक्स्ट इज रेड सॉइल। तो रेड सॉइल में पहले रीजनिंग टाइप, रेड सॉइल इज रेड इन कलर, soil require irrigation, dry farming is preferred in areas where red soil are generally infertile, red soil require irrigation. तो ये prominent reasoning type question हो गए। Other question is name two state where this soil is found, two advantages of this type of soil, two important crops grown in this type of soil, and how this soil is formed. And last question of this is name the parent rock that contribute to the formation of red soil and how does it get its red color. Coming to laterite soil, name the soil found on the summits of Eastern Ghats. How is this soil formed? Why is this soil not suitable for cultivation? We are asking about laterite soils. Next is name the process by which laterite soil is formed. Mention one disadvantage of this type of soil. Why it is red in color, give a physical characteristic, name two crops grown in it, how can laterite soil be made productive. हमने बोला इनप्रोडक्टिव है, ज्यादा अच्छी नहीं है, तो कैसे करेंगे उसको प्रोडक्टिव, कैसे बना सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी हमारी डी कैटेगरी क्या है, जिसमें कंजर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। अब कंजर्वेशन हो गई तो उससे पहले इरोजन भी है, तो इरोजन अगर पिछले पॉइंट में कवर नहीं होगा तो अगले में पक्का आएगा। तो पहले हम सॉइल इरोजन देख रहे हैं। What is meant by soil erosion? How is it caused? Name any two methods of controlling soil erosion. तो उसको रोक कैसे सकते हैं? Name an area in India in which each of the following processes take place. Sheet erosion, gully erosion, India में कहाँ हो रहा है? Reasoning type question में wind is a common agent of soil erosion in arid region, जहाँ हवा चलती है तेज। इसके अलावा foothills of Himalayas are affected by soil erosion. Last question from this is mention any one way in which man is responsible for soil erosion. Yeah, state any two human activities that have led to soil erosion in India. और last है how can deepening of riverbed help in preventing soil erosion. Coming to last topic, which is soil conservation, two method adopted by government to conserve soil, or the conservation of soil as a natural resource is very important. Give reason. Next question, two methods of controlling erosion of soil caused by running water. What is soil conservation? State a method of soil conservation in arid and semi-arid में क्या difference आ रहा है, और river valley prone to flood. तो ये हमारे पास क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं। गिव रीजन में और आ जाएगा कंजर्वेशन से रिलेटेड। Conservation of soil is very important. Reforestation should be practiced extensively, or terrace farming is ideal soil conservation method in hilly areas. So that's all from this chapter. मैंने आपको जितनी कैटेगरी के क्वेश्चंस बन सकते थे सारे बता दिए हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आप ज्योग्राफी में बहुत कम चैप्टर्स कर रहे हो, तो आप उन चैप्टर्स को जितना डेप्थ में करोगे उतने आपके मार्क्स पुल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जिन चैप्टर्स को हम कर रहे हैं उसमें से थोड़ी हम 10-10, 15-15 क्वेश्चन करके कह देंगे कि हो गया, चैप्टर हो गया। इसमें जितना इन डेप्थ जाओगे उतना 10 on 10 आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। वी नो ऑल दिस चैप्टर कैरी 10 मार्क पर्टिकुलरली अलग से आ रहे हैं, और इसके अलावा 1 MCQ में भी होगा और मोस्ट प्रोबेबली 1 मैप में भी होगा। तो अगर हम 11-12 मार्क्स के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर की तो पूरी बाल की खाल निकालनी बनती है ना। नेक्स्ट चैप्टर विच आई एम गोइंग टू कवर इज नेचुरल वेजिटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिमिटिव मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कौन सी टेक्निक है, स्लैश एंड बर्न या कोई और? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज why are the forests grown around the cities having iron and steel industries? क्यों फॉरेस्ट की जरूरत उन जगहों पर है जहां हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है? और दिस सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द वे एफोरेस्टेशन शुड बी अंडरटेकन इन इंडस्ट्रियल एरियाज। गिव रीजन कि क्यों होनी चाहिए वहां पर एफोरेस्टेशन जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। नेक्स्ट इज नेम द ट्री
द टिम्बर ऑफ विच कुड बी यूज फॉर द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया सेकेंड कैटेगरी हमारी नेम दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड अगला ट्रेल क्वेश्चन हमारा करेक्ट नहीं होगा अगर हमें यही नहीं आते होंगे। तो फर्स्ट इज अ सॉफ्ट एंड व्हाइट टिम्बर used for making toys and matchboxes. Hard durable timber used for shipbuilding and furniture making. A sweet smelling timber which yields an oil used for making handicrafts. The stilt roots are underwater during high tides. It yields wood that is hard and scented and is usually found in high altitudes. It is generally found in deltaic regions and is used to make boats. The furniture made from the wood of this tree is generally the most expensive. ये सारे ऐसे name these type of वाले questions हो सकते हैं. Next is name the natural vegetation found in the following region. उसका नाम आपने बताना है. Region है the western slope of Western Ghat. कौन सा वेजिटेशन टाइप है? सेकंड है नीलगिरीज, तीसरा है वेस्टर्न राजस्थान. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डू फॉरेस्ट हैव अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. एंड नेक्स्ट एसोसिएटेड क्वेश्चन इज एक्ट एज ए फ्लड कंट्रोल मेजर. मींस फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड करते हैं, ये आपको पता है कैसे करते हैं. गिव वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रीज. जैसे सुंदरी, संदलवुड, रोजवुड, इनका एक एक इंपॉर्टेंट यूज आपको देना है. डिफरेंशिएट बिटवीन एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन एंड स्टेट डिसएडवांटेज ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑल्सो. टू विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डू द फॉलोइंग ट्रीज बिलोंग. ट्री का नाम वो देंगे, आपको फॉरेस्ट का नाम बताना है. फर्स्ट कैटेगरी इज हिंटल एंड सुंदरी. नेक्स्ट इज रोजवुड एंड एबनी, देवदार एंड चिरपाइन, एंड ऑल्सो गिव देयर इंपॉर्टेंट यूज. तो इस तरह से क्वेश्चंस आपने पकड़ने हैं. जनरल क्वेश्चन वन मोर इज हाउ हैज द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर. कोई भी एक या दो पॉइंट्स आपको रेडी रखने हैं. नाउ कमिंग टू पर्टिकुलर फॉरेस्ट. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ऑल द क्वेश्चन एसोसिएटेड विद ओनली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. Name an important tree of this. State its use. Mention two reasons why tropical evergreen forests are difficult to exploit for commercial purpose. के लिए हम उसके अंदर तक क्यों नहीं जा सकते हैं. Next is why are tropical evergreen forests called evergreen. क्यों कहते हैं एवरग्रीन, क्यों उनके पत्ते हमेशा शेड नहीं होते हैं. या सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट लुक बेयर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर. कभी भी हमें पूरी तरह से बेयर नहीं लगते हैं. गिव रीजन. कमिंग टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस और मॉनसून फॉरेस्ट. मेंशन एनी 3 ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट एंड स्टेट वन यूज ऑफ ईच ऑफ दीज ट्रीज. इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मोस्टली हर साल कवर किया जाता है, व्हाई इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कमर्शियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ इंडिया, और commercially more valuable than other type of forest, or great commercial value, or most exploited forest belt of India. इस तरह का कोई भी क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है. The trees in this forest shed their leaves for about 6 to 8 weeks during March and April. Give reason. State two characteristics. ये भी आ जाएगा. बस इसके अलावा हमने सारी तरह के कवर कर लिए इसके अंदर कि क्यों इनको हम मतलब एक्सप्लॉइट इतना कर पाए हैं, क्योंकि एसेसिबल है वो तो आप रीजंस जानते ही हैं. नेक्स्ट इज थॉर्न एंड स्क्रब वेजिटेशन, जिसको ड्राई डेजर्ट, सेमी डेजर्ट वेजिटेशन भी बोल सकते हैं. हाउ डू ट्रीज इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट अडेप्ट देमसेल्फ टू द ड्राई क्लाइमेट. मतलब क्या अडेप्टेशंस हैं. Name a state in India where thorn and scrub forest is found. Give 2 ways by which trees that are found here have adapted to the climate. The trees in the tropical desert forest have stunted growth. Give reason. And next is xerophytic plants have long roots. Give reason. 2 ways in which natural vegetation of desert and semi-desert areas has adapted itself to the climatic condition. यही क्वेश्चन xerophytic बन के कि लॉन्ग रूट्स होती हैं आ जाता है, वो भी पूछ सकते हैं. और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है. कमिंग टू टाइडल और मैनग्रूव और लिटोरल फॉरेस्ट, आपको इनको सब नाम से याद रखना है. अगर वो लिटोरल बोलेगा तो आप ये थोड़ी कहोगे मेरे को तो ये टाइडल के नाम से पता है, मुझे लिटोरल या मैनग्रूव नहीं पता. हमें सब पता होने चाहिए. What is the name given to the natural vegetation found on the coastal strip of the Ganges Delta? Name the typical tree found in this region.
सुंदरी तो सबको पता ही है, वो ये भी बोल देंगे अदर देन सुंदरी, आपको फिर हिंटल पता है, गॉर्जन पता है, सब बताने पड़ेंगे। विद रेफरेंस टू द लिटोरल फॉरेस्ट, why do the trees in this forest grow aerial roots? Name one area in India where this forest is found. Two conditions required for the growth of littoral forest. Why is it difficult to move through tidal forest? अंदर जाना मुश्किल क्यों है? या फिर trees of littoral forest have stilted roots. Stilted roots या फिर aerial roots भी पूछ सकते हैं, या फिर in natural vegetation which natural vegetation belt is सुंदरी tree found? तो सुंदरी बोला तो पता ही है सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? जहां मैनग्रोव फॉरेस्ट है। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन वेजिटेशन वेरीज विद चेंज इन क्लाइमेट। और सेकेंड इज माउंटेन्स हैव वेरिड वेजिटेशन, अलग अलग तरह की वेजिटेशन क्यों होती है। और जो मैंने फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आपको बताया यानी कंजर्वेशन बेस्ड, तो लास्ट क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस चैप्टर आर मींस जो कंजर्वेशन बेस्ड हैं। पहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा भी जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रोफॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट इज मेंशन 3 रीजंस व्हाई फॉरेस्ट मस्ट बी कंजर्व्ड, और व्हाई इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन द नीड ऑफ द आवर, क्यों करना चाहिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व। स्टेट 2 ways by which forests help in protecting the environment. How do forests act as a source of income for the people? और लास्ट इज नेम अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड दैट इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी। Which primitive system of agriculture that led to large scale destruction? Name the process which involves planting 2 saplings for each tree that is felled. जो अगर हमने एक पेड़ काटा उसकी जगह पे 2 saplings लगाएंगे, this method is known as reforestation. With this, all important questions from this chapter are over from my side. आप जितना डेप्थ में जाएंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके स्कोर होंगे इन चैप्टर्स में से। Last chapter from my side is transport in India. The general questions may give 2 reasons for the means of transport being called the lifelines of nation's economy. ये पूछा जा सकता है, और a well developed transport network is important for industrial growth. यानी मैंने आपको क्या बताया था, पहले कैटेगरी मींस इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये उसका क्वेश्चन हो गया। अब हम बाकी सारे ट्रांसपोर्ट वेज पे आ रहे हैं। सबसे पहले रोडवेज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज इन इंडिया? गिव 2 रीजन। व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? ये तो आपको पता है, बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? मेंशन एनी 2 ways in which it will help in the economic development of the country. What is the main objective of golden quadrilateral or one economic benefit of golden quadrilateral? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास कवर किए जाएंगे। Next is, why is road transport in India considered more useful than rail transport? तो आपने जो भी इसका एडवांटेज देना है वो रेल के कंपैरेटिवली देना है। गिव 2 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। और इसके अलावा इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, रोडवेज आर ऑलवेज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो भी आपको रोडवेज के एडवांटेजेस ही देने हैं। Next is, roadways are not well developed in Northeast India. Give reason. Give reasoning वाले में ही है। NSEW is helpful for India. Name the terminal stations of the East-West corridor. कौन-कौन से terminal stations हैं? Who looks after the construction and maintenance of national highways or border roads? Mention 3 disadvantages of roadways. All these questions are associated with roadways only. Now coming to railways. Why rail transport more comfortable and popular in India? Which rail gauge is mostly limited to hilly areas only? कौन सी होती है? Narrow gauge, जो सबसे पतली वाली होती है। State 2 or 3 problems faced by railways, or they can also ask mention 1 disadvantage of rail transport. तो प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज में तो एक ही बात है। Why is the railways an important means of transport as compared to airways? तो यहां पर हमें एयरवेज के कंपैरेटिवली रेलवे के क्या फायदे हैं वो देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेलवेज आर अंडर द पब्लिक सेक्टर मैनेज कंप्लीटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गिव रीजन। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों कंट्रोल करती है? क्योंकि आपको पता है इसमें बेनिफिट तो ज्यादा है ही नहीं है। नेक्स्ट इज, व्हाई इज द रेलवे नॉट वेल डेवलप्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और रेलवेज आर वेल डेवलप्ड इन नॉर्थ स्टेट, तो नॉर्थ में क्यों है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्यों नहीं है? इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कमिंग टू वाटरवेज, व्हाई हैज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनलैंड वाटरवे डिक्लाइंड? गिव 2 रीजंस।
गिव 2 रीजंस व्हाई पेनिनसुलर रिवर, नीचे वाली पेनिनसुलर रिवर और साउथ इंडियन रिवर नॉट आइडियल फॉर नेविगेशन. Name a port on the east coast of India which is often hit by cyclones during the months of October and November. देखो नेम पोर्ट वाले में तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन तो यही दूंगी कि सारे के सारे 12 पोर्ट्स के लिए आपको करना चाहिए. Next is name the inland waterway that connects Prayagraj to Haldia, which is national waterway number 1. Mention one advantage and one disadvantage each of inland waterway than to Deccan rivers. State a reason why the northern river are more suitable for navigation. तो northern में है, southern में नहीं है, comparison भी आ सकता है. Mention 2 advantages and 1 disadvantage of waterway. Inland waterway declining in its importance nowadays. क्यों decline हो रहा है इनका importance? Give 2 reasons for your answer. Mention 1 advantage of coastal shipping. क्या फायदा है? Water transport is not as popular as land transport in India. Comparison land के साथ आ रहा है. और लास्ट है सी ट्रांसपोर्ट हैज लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी इन रिसेंट टाइम, जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला. लास्ट हम आ रहे हैं एयरवेज के ऊपर. 2 एरियाज वेयर हेलीकॉप्टर सर्विसेज में बी यूज्ड. गिव 2 डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, और ऐसे भी बोल सकते हैं नियरली 70% ऑफ इंडियंस डू नॉट यूज एयर ट्रांसपोर्ट. तो गिव रीजन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका कॉन्ट्रास्ट है, why is it still a popular means of transport in India? In recent times में हम अभी भी ट्रांसपोर्ट के लिए इसको यूज कर रहे हैं. Give 3 reasons as to why airways are becoming as a popular means of transport in modern India. Why are airways important during a natural calamity? और इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर क्रूशियल ड्यूरिंग इमरजेंसीज. आपने देखा होगा स्पेसिमेन में, बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार कवर हुआ है. और एक और क्वेश्चन, एट प्रेजेंट टाइम एयरपोर्ट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इवन इन स्मॉलर टाउन्स ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू मी ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% पेपर में इस बार कवर किया जाएगा मेरे गेस वर्क के अकॉर्डिंगली. क्या है? प्रेजेंट टाइम में एयरपोर्ट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इवन इन स्मॉलर टाउन्स ऑफ इंडिया. छोटे छोटे टाउन्स में भी आपने देखा, अयोध्या जैसे और भी कितनी जगहों पर जहां पर पहले एयरपोर्ट बिल्कुल नहीं थे, इनफैक्ट अच्छे रेलवे स्टेशन भी नहीं थे, वहां पर अब एयरपोर्ट बन गए हैं. तो क्यों बने हैं? इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज वो चाहते हैं बढ़ जाए, टू एनकरेज एयर ट्रेवल क्योंकि वो हमारा टाइम सेव करता है, और फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज के लिए किया गया है. ये आंसर है. बट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम में एयरपोर्ट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इवन इन स्मॉलर टाउन्स ऑफ इंडिया. तो विद दिस आई कंक्लूड ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली ये 5 चैप्टर्स वो हैं जो हर स्टूडेंट कवर करेगा. मैं सजेस्ट यही करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कि 6 क्वेश्चंस के लिए हमें मिनिमम प्रिपेयर होके जाना है. अब वो 6 चैप्टर आप कौन सा कवर करोगे वो स्टूडेंट वेरी करेगा, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना रही हूँ. बहुत मुश्किल से बहुत टाइम लगाकर मैंने इनको कंपाइल किया. आप कब से रिक्वेस्ट कर रहे हो और आज जाकर इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना पाई हूँ. अभी भी पता नहीं अपलोड होने में थोड़ा और टाइम लगेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. फिर भी मैंने आपको बार बार बताया कि मैं ज्योग्राफी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आपको लगता है कि हाँ आप अच्छा करना चाहते हो, तो मिनिमम 8 to 10 क्लासेस के बीच में मैं वो क्रैश कोर्स कवर करूंगी. इफ यू वांट डिटेल्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नियर अबाउट 13 to 15 दिसंबर के बीच में हम इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. रेस्ट डिपेंड ऑन योर क्वेरीज. अगर मिनिमम 10 स्टूडेंट्स में आ जाएंगे तो इकोनॉमिकल हो जाएगा. वी कैन स्टार्ट दिस कोर्स. Thank you for watching till the end. Keep watching and sharing. And don't forget to press the bell icon, please.